শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা তাৎপর্য দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ শুভারম্ভ করিব। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত 10 নামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে তীর্থ, আশ্রম ও সরস্বতী এই তিনটি সম্প্রদায় সদাচার ও সম্মানে অপর संप्रदाय सन्यासीদের থেকে শ্রেষ্ঠ। ठीक है, तो ये मायावादी सन्यासी में 10 प्रकार का है और 10 प्रकार में से कौन सा फेमस है? ये 3, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। क्लियर है अभी तक? তাই এই তিনটি সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা তাদের পদমর্যাদায় অত্যন্ত গর্বিত। ক্লিয়ার है अभी तक? যারা বন, অরণ্য, ভারতী আদি উপাধি বিশিষ্ট মায়াবাদীরা তাদের নিম্নতর স্তরের সন্ন্যাসী বলে মনে করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ভারতী সম্প্রদায় থেকে এবং তার ফলে তিনি নিজেকে প্রকাশানন্দ সরস্বতী থেকে নিম্ন স্তরের সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিলেন। ঠিক আছে, तो मालूम है महाप्रभु ने किनसे संन्यास लिया? इंद्रावती माता जी केशव भारती से प्रभु जी, केशव भारती। और वो बहुत निम्न स्तर का, मैंने 10 प्रकार का सन्यासी, उनमें से निम्न स्तर का सन्यासी भारतीय संप्रदाय का, तो इसीलिए महाप्रभु ने दूर बैठा था क्योंकि खुद भी भारतीय संप्रदाय से सन्यास लिया। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের থেকে স্বতন্ত্র থাকার জন্য মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সর্বদাই মনে করেন যে তারা অতি উচ্চ পারমার্থিক স্তরের অধিষ্ঠিত, কিন্তু তাদের বিনীত ও নম্র হওয়ার শিক্ষা দান করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু नीच संप्रदाय सन्यास ग्रहण करेছিলেন जानबूझके। महाप्रभु ने केशव भारती नीचे संप्रदाय सन्यास लिया। क्यों? सो दैट उन लोग के ताদের বিনীত ও নম্র হওয়ার শিক্ষা দান করার জন্য, उन लोग को शिक्षा दान करने के लिए। समझ में आया अच्युत करुणेश्वर प्रभु? এইভাবে তিনি স্পষ্টভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সন্ন্যাসী হচ্ছেন তিনি যিনি পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত। পারমার্থিক জ্ঞানে যিনি উন্নত তাকে উচ্চ আসন দান করে তার আনুগত্য বরণ করা উচিত। ठीक है, तो इसीलिए इन लोग ने महाप्रभु को बुलाया कि आइए, आप वहां कॉर्नर में क्यों बैठे हुए हैं? अपवित्र स्थान में क्यों बैठ रहे, जमीन पे क्यों बैठे? अनुगत्य मतलब तार अनुगत्य বরণ করে, তার अनुगत्य मीन्स उनका फॉलोअरशिप বরণ করা উচিত। अनुगत्य মানে অনুগত, কারো অনুগত হওয়া মানে তার কারোর মানে অধীন হওয়া, কারোর দাসত্ব হওয়া, কারোর আন্ডারে হওয়া, তো সেটা বরণ করা উচিত। পারমার্থিক জ্ঞানে যিনি উন্নত তাকে উচ্চ আসন দান করে তার আনুগত্য বরণ করা উচিত। जैसे कभी सीनियर भक्त आया घर पे, तो उनको ऊंचा आसन देना पड़ता है ना, और हम लोग उनके नीचे बैठते हैं और इस तरह से हम लोग उनका अनुगत्य बरण करছি, उनका जो सीनियरिटी उसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সাধারণত বলা হয় বেদান্তি, যেন বেদান্ত শাস্ত্রে তাদেরই একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। ऐसा लगता है कि उन लोग का एकदम मोनोपोली है वेदांत शास्त्र में। প্রকৃতপক্ষে যিনি যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তিনি হচ্ছেন বেদান্তি। হ্যাঁ, যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।
ভাগবত গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে বৈদশ্চ সর্বম অহমেব বৈদ্য। সমস্ত বেদে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে জ্ঞাতব্য বিষয়। তথাকথিত মায়াবাদী বেদান্তীরা জানেন না কৃষ্ণ কি, তাই তাদের উপাধি संपूर्ण अर्थहीन। चाहे वो मायावादी में से ऊपर वाला सन्यासी से भी उपाधि लिया हो, लेकिन यूजलेस, क्योंकि अगर भगवान कौन है यही जानता नहीं है तो फिर क्या जानता है, इतना वेद पाठ करके क्या फायदा। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সব সময় মনে করেন যে তারাই হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাই তারা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচারী বলে মনে করেন। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে সন্ন্যাসীদের সেবায় যুক্ত থাকা এবং তাকে গুরুরূপে বরণ করা। जैसे 4 आश्रम क्या क्या है अच्युत कर्णेश्वर प्रभु? हाँ? ब्रह्मचर्य आश्रम और ये आप कौन से आश्रम में हैं? वाह वाह, भूल ही गया। सर्वधर्मान परित्यज्य, वेरी नाइस। आप कौन से आश्रम में मालूम नहीं? ब्रह्मचारी बोल के रुक गया। यस, हरे कृष्ण। 4 कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ संन्यास, वानप्रस्थ गृहस्थ संन्यास और वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य। गृहस्थ लोग गृहस्थ याद नहीं आ रहे। अच्छा, ये क्या क्या लक्षण बोले ये? संन्यास, बनप्रास, गृहस्थ और ये ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ব্রহ্মচার্য, গৃহস্থ বা গার্হস্থ, তারপর হচ্ছে বনপ্রস্থ, তারপর সন্ন্যাস। ये 4 आश्रम है। हरे कृष्णा प्रभु। तो एक सेकंड माता जी, आप हाथ उठाए, हमने देखा, रुक जाइए प्लीज, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो कहाँ थे हम? कुछ बोलना चाह रहे थे। ब्रह्मचारीর কর্তব্য হচ্ছে সন্ন্যাসীদের সেবায় যুক্ত করা। तो जो ब्रह्मचारी, जो देखिए, जो एकदम इनिशियल ब्रह्मचारी है, उन लोग का सेवा, उन लोग का उचित है ना कि वो सन्यासी लोग का सेवा करे। मंदिर में भी हम लोग देखते हैं ना, सन्यासी लोग आते तो ब्रह्मचारी लोग सेवा करते हैं। तो मायावादी लोग वैष्णव लोगों को, वैष्णव सन्यासी को ब्रह्मचारी के स्तर में देखता था, माने जूनियर स्तर पे देखता था। उन लोग सीनियर है, ब्रह्मचारी उन लोग को सेवा करेगा, ये उन लोग उम्मीद करते थे। ठीक है, ये बोली माता जी। प्रभु जी, वेदों में क्या भगवान के बारे में वर्णन नहीं किया गया है? जैसे मायावादी लोग तो, जैसे प्रभु जी, जो जब वो लोग वेदों का अध्ययन जब करते थे तो क्या भगवान के बारे में वो नहीं जान पाते थे? कैसे नहीं जान पाते थे? देखिए, वेदों में, अच्छा प्रश्न है कि वेदों में क्यों जान नहीं पाते थे, तो क्यों उनको स्वीकार नहीं करते हैं? तो वेदों में हम लोग को मालूम है कर्मकांड से पूरा भरा हुआ है वेद। इनफैक्ट मैं बहुत बार क्लास में बताया, अराउंड 93% मैंने जो प्रवचन में सुना, 93% कितना होता है आप समझ रहे हैं? 100% में अगर 93% कर्मकांड, यानी इस देवी का पूजा करेगा तो ये मिलेगा, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे प्राप्ति होगा। कर्मकांड माने क्या? कैसे कर्म करने से उसका फल मिलके उसको इंद्र तृप्ति भोग कर सकते हैं। कर्मकांड माने क्या? तृतीय पुरुषार्थ, यानी धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम। हाँ, धर्म किया जाए किस लिए? कि कुछ टाका हो और टाका से कुछ हम अपना इंद्र तृप्ति कर पाए। समझ में आ रहा है इंद्रवती माता जी? तो इससे पूरा भरा हुआ है। एक बात बताइए, सिर्फ 7% शास्त्र शुद्ध भक्ति, यानी भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करो, वही जीवन का सार है, इसके बारे में बताते हैं। तो अगर कोई 93% में फंसना इजी है या 7% में फंसना इजी है, बताइए। एक नौसखिया के लिए किसमें फंसना इजी है? 93 में फंसेगा। 93 में भी फंसेगा वो लोग। यस, 93% में फंस जाते हैं मायावाद लोग। कर्मकांड, शास्त्र का अध्ययन करो और ज्ञानी बनो, ये सब भी फंस जाते हैं। तो कौन देवी देवता उपासक, ये सब में ज्यादा उन लोग रुचि रखते हैं। शास्त्र का अध्ययन होकर पांडित्य, वो भी तो एक ऊंचा इंद्र तृप्ति है ना। समझा कीजिए, शास्त्र अध्ययन करते रहता है और उन लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ये भी एक क्राइटेरिया है। और कितना गर्व अहंकार होगा सोचिए। एक तो स्मार्त है, मतलब जन्म से ब्राह्मण है, और उसके ऊपर वेद अध्ययन करके एकदम पटु हो गया।
और सबको वेद अध्ययन करो, पढ़ो पढ़ो वेद अध्ययन करो, इसी में। लेकिन आप जो बोला ये भी सत्य है कि हो सकता है उनमें से कोई कोई वो 7%, अगर भगवान का कृपा हो, उस 7% में फंस गया और भगवान का स्वविशेष रूप का आराधना कर रहा है। तो अगर स्वविशेष रूप का आराधना करेगा तो फिर मायावाद लोग उनका अलग कर देगा, वो वैष्णव में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 100 व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करेगा, वैष्णव सिद्धांत को ग्रहण कर सकता है, उतना कितना परसेंटेज है? तो जो वैष्णव सिद्धांत का मैं जो प्रश्न के उसी का उत्तर दीजिएगा। अगर 100 व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन करेगा, वैष्णव सिद्धांत को उनमें से माने शास्त्र से ग्रहण करेगा, कितना परसेंट है हो सकता है? वेदगामिनी राधारानी माता जी 7%। 7%, कॉमन सेंस। क्योंकि 7% ही तो दिया हुआ है उसमें, तो 100 व्यक्ति गया तो 7% तो फंस सकता है उसमें, बोल नहीं सकता अभी कितना फंस सकता है, लेकिन टेंडेंसी तो उतना ही है क्योंकि 7% ही दिया हुआ है शास्त्र कृष्ण भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में। बाकी 93 तो मायावाद में फंसने का चांस ज्यादा है। सो मायावाद सन्यासी का संख्या भी बहुत ज्यादा है समाज में कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें फंसने का चांस ज्यादा है। अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, तो ये वेदों के रचयिता जो है वेदव्यास जी हैं एकदम, और वेदव्यास जी जो लिखे हैं पांडुलिपि में जो भी बनाए हैं वो तो भगवान की वाणी है। हाँ एकदम। तो तो भगवान ने ऐसे मायावाद लिखा है, ये आपका प्रश्न है क्या? नहीं 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 नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि वेदव्यास की लिखते हुए और भगवान ने ये सब कहा है, ऐसी मान्यता है, तो ऐसा कैसे हुआ जो भगवान अपने बारे में या अपने पुरुषार्थ के बारे में नहीं बताया कि खाली कर्मकांड बताया है? ये तो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अच्छा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस समझते हैं आप? हाँ, ये हाँ। झांकने का एक प्रोसेस है कि, और बहुत बहुत इसका उद्देश्य है। एक तो है व्यक्ति कम से कम धर्म अर्थ काम तक आएगा, अच्छा। धर्म करेगा, धर्म का वेदों का अध्ययन करना भी धार्मिक माना जाता है, आध्यात्मिक नहीं माना जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक तभी माना जाएगा कि अगर वो वेदों पढ़ के वो भगवान कौन है ये सब जान पाया, स्वीकार कर पाया, अध्ययन कर पाया, मनन कर पाया, प्रैक्टिस कर पाया, प्रचार कर पाया, तब उसको आध्यात्मिक माना जाएगा। लेकिन वेद उपासना करके अगर कर्मकांड में फंस गया तो उसको धार्मिक व्यक्ति बोल सकता है। तो नाई मामा से काना मामा बोल, एटलीस्ट वो कुछ स्तर पे आएगा न कि कुछ हमारा एक आइडिया बोल जाते हैं कि जब जीवों का पूरा एक प्रश्न का पहले उत्तर सुन लीजिए, फिर अच्छा। सेकंड वाला। तो कम से कम व्यक्ति को वेद शास्त्र अध्ययन कराने का स्तर पे भी तो ला सकते हैं। इट इज स्टेप बाय स्टेप एलिवेशन। कम से कम ज्ञानी बनेगा, फिर हो सकता है योगी बनेगा, फिर हो सकता है वो भक्त बने। श्रील प्रभुपाद जैसे दे दिया पूरा वेदों का सार निचोड़ कर दे दिया, भाई भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, वो तो मनुष्य नाम सहस्रेशु, वो तो बहुत कम संख्या में है जो इसको ग्रहण कर लेगा। समझ में आ रहा है इंद्रावती माता जी? बाकी तो इसको ग्रहण नहीं करेगा, वो मायावाद कर्मकांड में फंस जाएगा। लेकिन ठीक है, नाई मामा से काना मामा भलो, एटलीस्ट थोड़ा पार्शियल एलिवेशन तो होगा, शास्त्र अध्ययन करे, वेद उससे उस तरह से उसका कभी कभी हो सकता है कि वो फिर आएगा इस स्तर पे। इसीलिए जो व्यक्ति वैष्णव है उसके लिए क्या बोला जाता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है उसके लिए क्या बोला जाता है कि वो पूर्व जन्म में, जन्मों में जितना पवित्र मंत्र सब अध्ययन उच्चारण कर चुका है, मंत्र जाप कर चुका है, जितना पवित्र नदी है उन सब में स्नान कर चुका है, जितना पवित्र वेद शास्त्र है सब उसका अध्ययन कर चुका है, उसीलिए वो अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, वैष्णव सिद्धांत में आया है। दीज थिंग्स ऑलरेडी हो चुका है। अगर ये सही है अभी मैंने जो बोला, तो इसका मतलब क्या, ये शास्त्र अध्ययन, वेद अध्ययन सब ये भी एक स्टेपिंग स्टोन है एलिवेशन के लिए, ऊपर प्रगति के लिए। ये भी एक सीढ़ी है। हालांकि आप लिफ्ट लेके डायरेक्ट जा सकते हैं। ओके, बोलिए अभी अच्युत। ये भागवतम भी तो उनका ही लिखा हुआ है। भागवतम व्याख्या उनका ही व्याख्या नहीं, व्याख्या प्रभुपाद जी ने तो व्याख्या वो विस्तृत किया। भागवतम खुद कमेंट्री है, व्याख्या है।
वेदांत का ऊपर भागवतम व्याख्या है। प्रभुपाद ने उस व्याख्या का व्याख्या किया है। व्याख्या की भागवतम हाँ इज अ कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। मैं फिर से बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है। कमेंट्री माने व्याख्या है, किसका? वेद व्यास जी का। अभी बोलिए क्या प्रश्न है? अच्छा, प्रश्न ये है कि भगवान अगर ये बताए थे कर्म कांड के ऊपर ज्यादा बता दिए थे, तो इसका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि शुरू में भगवान ने जो ब्रह्मा को सृष्टि करने को दिया, फिर उनके आचार व्यवहार को संपादित करने के लिए इस तरह का मतलब वेद निकाला। हम प्रश्न समझ नहीं पाए। मतलब जीवों को किस तरह से आचार व्यवहार करना होगा या उनके जीवन के लक्ष्य क्या होगा, इस तरह को बताने की। आचार व्यवहार करना होगा, लक्ष्य करना होगा, स्टेप बाय स्टेप एलिवेशन हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर हाँ। कृष्ण प्रेम। हाँ, तो ये वेद अध्ययन करते करते धर्म अर्थ काम, फिर मोक्ष के बारे में वो सोचेगा, फिर कभी हो सके वैष्णव बनकर वो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम पांचवा पुरुषार्थ तो बताया नहीं गया, अंत में बताए हैं वेदव्यास जी। बताया नहीं गया ऐसा नहीं है, बताया गया है। शास्त्र में पंच पुरुषार्थ के बारे में सब कुछ है दिया हुआ है, कृष्ण भक्ति के बारे में अच्छा से दिया हुआ है, लेकिन बहुत सीमित दिया हुआ है, तो सब उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। यहीं पर मैंने चौथे में फंस कर रह जाता है ना। इसलिए दूसरा जो धर्म का जो ग्रंथ का है वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। प्रभुपाद जी बताते हैं दूसरे ग्रंथों का, दूसरे धर्मों का जो भी सिद्धांत है वो गलत नहीं है, लेकिन वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। क्योंकि उस समय का व्यक्ति जब वो सब धर्म आया, उतना तक ही हजम कर पाता। मुख्य प्रभु হরে কৃষ্ণ, হরিবল, ধন্যবাদ, প্রণাম। हरे कृष्ण हरे बोल। যেটা বলার কারণ হচ্ছে, প্রথমত হচ্ছে ব্যাসদেব উনি নিজে খুদই অবতার, ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে বেদ হচ্ছে আমাদের জীবের পথের পাথেয়। যেমন মনু সংহিতা থেকে আমরা আইন পেয়েছি, যজুর্বেদ থেকে আমরা সঙ্গীত পেয়েছি, অথর্ববেদ থেকে আমরা চিকিৎসা পেয়েছি, এরকম বিভিন্ন বেদ। এই যে বেদ, এইটা হচ্ছে আমাদের মানে প্রত্যেকটা জীবের চলার পথের পাথে হচ্ছে বেদ। বেদটা সাধারণ জিনিস নয়। এবার আধ্যাত্মিক দিয়ে চিন্তা করলে পঞ্চম বেদ, যখন নারদ মুনির কাছে ব্যাসদেব মানে উনার মানে কষ্টের মনের দুঃখের কারণ বলেন, তখন নারদ মুনি উনাকে বললেন যে তোমার এই প্রবলেম সলভ হয়ে যাচ্ছে পঞ্চম বেদ। সমস্ত বেদের সার হচ্ছে পঞ্চম বেদ, যে গীতা। বেদটা জেনারেল নয়, যে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করছে, মানে সিভিলাইজেশন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লিগ্যাল থিং, অল দ্য থিং কামিং ফ্রম দ্য বেদ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। सुधा में वल्लभी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग के आज क्लास ज्वाइन किए हैं शिव शंकर मुखर्जी प्रभु जी। आज सैटरडे को आपका भागवत गीता क्लास भी अटेंड किए थे पूरा प्रभु, तो मैंने उनको बोला था कि आप चैतन्य चरितामृत क्लास ज्वाइन करिए, तो प्रभु आज ज्वाइन किए। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। ओके कहाँ थे हम लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं तात्पर्य का। সো ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে সন্ন্যাসীদের সেবায় যুক্ত থাকা এবং তাকে गुरु रूपे वरण करा। ये मायावादी लोग सोचते थे कि वैष्णव जो लोग हैं उन लोग क्या है, उन लोग ब्रह्मचारी के स्तर पे, उन लोग का कर्तव्य है कि हम लोग का सेवा करें, मायावाद सन्यासी लोगों का ये उन लोग का धारणा था। आगे মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কেবল নিজেদের গুরু বলে ঘোষণা করেই সন্তুষ্ট নন, তারা নিজেদের জগৎ গুরু বলে প্রচার করতে চান, যদিও সারা পৃথিবী तारा चोखेও देखेनी। क्योंकि उन लोग का क्या है, एक जगह बैठो पाठ करो, जाकर प्रचार करो, वो तो देखा नहीं, पृथ्वी घूमता नहीं, वो जगह अपना मठ में रहता है, अपना खाना पीना ठीक हो रहा है, वेद अध्ययन ठीक हो रहा है, बस ये तो जीवन है। কখনো কখনো তারা খুব আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরে শোভাযাত্রা সহকারে হাতির পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেন, প্রভুপাদজি बता रहे। এইভাবে গর্বে স্ফীত হয়ে তারা মনে করেন যে তারা জগৎগুরু হয়ে গিয়েছে, लेकिन জগৎ কে अपने घर से बाहर निकले नहीं कभी। শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে যিনি তার জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, বাক্যের বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ এবং ক্রোধের বেগ সম্পূর্ণরূপে দমন করেছেন, তিনিই হচ্ছেন জগৎগুরু। পৃথিবীং সশিষ্য, এই ধরনের জগৎগুরু সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করতে পারেন। এই সমস্ত গুণাবলী রহিত অহংকারে মত্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা
বিনীতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের কখনো কখনো নির্যাতন ও निंदाও করেন। क्लियर है? तो ये सब बैकग्राउंड बता दिया आगे से श्रील प्रभुपाद मायावादी सन्यासी के बारे में। अभी प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु को बुलाया है और महाप्रभु बोला है कि आप लोग के साथ बैठना शोभा नहीं देता, मेरे जैसे वैष्णव सन्यासी ठीक नहीं देता। और वैष्णव सन्यासी क्या है? ब्रह्मचारी जैसा है, आप लोग के साथ कैसे बैठे हम। अगला श्लोक 65। आपने प्रकाशानंद हाथेते धरिया, कोई पढ़िए। আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া বসাইলা সভা মধ্যে সম্মান করিয়া, বসাইলা সভা মধ্যে সম্মান করিয়া পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, উঠিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, কেশব ভারতীয় শিষ্য তাতে তুমি ধন্য, কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য, সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে, সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে, কি কারণে আমার সবার না করো দর্শনে। কি কারণে আমার সবার না করো দর্শনে। तो उन सभी मायावाद सन्यासी का जो प्रमुख नेता प्रकाशानंद सरस्वती, উনি নিজে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তার হাত ধরে অত্যন্ত সম্মান সহকারে সবার মধ্যে এনে বসালেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রকাशानंद सरस्वती এই সম্মানজনক ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। तो इसका मतलब क्या है? व्यक्ति में श्रद्धा है। अभी आदो श्रद्धा से क्या होगा? उनका जरूर महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करेगा। ये श्रद्धा जो है, थोड़ा लिटिल श्रद्धा, ये क्या है? नित्यानंद भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ये परचेजिंग प्राइस है। कृष्ण भक्ति खरीदने का मूल्य क्या है? श्रद्धा। वो भजन है ना, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातियाछे नाम हट्ट जीवेरो कारण, उसमें दिया हुआ है कि ये जो नाम हट का एक बाजार नित्यानंद प्रभु स्वरूपगंज में पाता है, ये हरिनाम खरीदने का व्हाट इज द मूल्य क्या है? मूल्य है श्रद्धा। थोड़ा फेथ होना पड़ेगा। उसीलिए बोला जाता है ना, आप अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ठाकुर जी 10 कदम आगे बढ़ा के आपको ले लेगा, अपना लेगा। लेकिन पहला कदम किसको बढ़ाना पड़ेगा? आप बोलेंगे नहीं, पहला कदम ठाकुर जी बढ़ाएंगे फिर हम आएंगे। नहीं, बैड लक। पहला कदम आप ही को बढ़ाना पड़ेगा। और वो पहला कदम क्या है? श्रद्धा। बस थोड़ा श्रद्धा होना चाहिए, थोड़ा, बाकी सब भगवान संभाल लेगा। तो देखिए प्रकाशानंद सरस्वती जो महाप्रभु को नोटिस किया, आकर्षित हुआ और उनको पकड़ के अपने साथ, इसमें इससे ही हो गया महाप्रभु। बस महाप्रभु अभी कृपा बरसाते रहेगा उनके ऊपर। बस उतना जो किया ना, वो अपना दरवाजा खोल लिया वैकुंठ के लिए। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এই সম্মানজনক ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। ভেরি নাইস এসে কিয়া উन्होंने। এই ধরনের ব্যবহারকে বলা হয় অজ্ঞাত স্বীকৃতি। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে অজ্ঞাত স্বীকৃতির দ্বারা পারমার্থিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীতে পরিণত হতে পারেন। বাস আপনার অজ্ঞাত স্বীকৃতি, অজ্ঞাত স্বীকৃতি माने अज्ञात माने जिनको ज्ञान नहीं है, स्वीकृति मिल गया। क्यों? क्योंकि ना जाने कि ये साक्षात भगवान है, थोड़ा उनमें श्रद्धा है और प्रकाशानंद सरस्वती ने उनका हाथ पकड़ के अपने साथ बैठाया। महाप्रभु जमीन पे बैठे हुए थे, तो इसीलिए इसको बोला था अज्ञात। अज्ञात माने जो ज्ञान नहीं था, विद अननोइंगली। जैसे अज्ञात स्वीकृति का और उदाहरण दो, मैं आचार्य रत्न प्रभु का प्रवचन में सुन रहा था कि एक कुकुर हाँ, कोई दूर से एक शिकारी ने एक चील को क्या बोलते हैं हिंदी में? काइट चील ही तो बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, काइट बोलने से फिर सोचेगा लोग काइट। गुड डे। ईगल 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 ईगल। तो एक ईगल को कोई एक दूर से शिकारी मारा और ईगल वो जाकर एक विष्णु मंदिर में गिरा, डेड बॉडी। अभी ईगल मरा नहीं था, अभी तक भी थोड़ा जिंदा था, लेकिन छटपट कर रहा था। तुरंत एक कुकुर, एक डॉग देखा, अरे वाह ब्रेकफास्ट,
तुरंत जाकर ईगल को मुंह में लिया, और वो डॉग जब ईगल को मुंह में लिया तो और एक डॉग उसको देख लिया, तो वो डॉग को भी चाहिए ब्रेकफास्ट, तो वो भी पीछे की आया। पहला डॉग क्या मुंह में लेकर भागने लगा, विष्णु मंदिर के चारों ओर भागने लगा, पीछे पीछे उसका दूसरा डॉग, ऐसे करके 2-4 बार भागा। फिर थोड़ा साइड में जाकर खाने गया, जैसे खाने गया वो चील भगवत धाम चला गया। हरे कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो चील अपना जीवन का अंतिम समय में छटपट कर रहा था, और छटपट करते करते उनका विष्णु मंदिर परिक्रमा हो गया, क्योंकि ये मुंह में लेकर उनको परिक्रमा 3-4 बार घुमा। उस समय वो छटपट, समझ रहा है उसका कितना व्याकुल था, उस समय वो छटपट कर रहा था और शायद भगवान को पुकार रहा था और परिक्रमा भी कर रहा था। उस व्याकुलता, उस देखकर ठाकुर जी ने उसको स्वीकृति, ये है अज्ञात स्वीकृति। अज्ञात प्रभु जी, अजामिल भी तो नारायण का नाम ले रहा था। अजामिल का अज्ञात तो बोल ले ठीक होगा ना, क्योंकि उसका बैलेंस था। अजामिल का बैलेंस था, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, वो बचपन से पिताजी के साथ यज्ञ वगैरह 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 करता था। तो अगर हम बोले अजामिल का अज्ञात, वो उचित नहीं हुआ, क्योंकि उसका भी कलेक्टेड पायस एक्टिविटीज था, बैलेंस पॉकेट में था, जिसके वजह से मृत्यु के समय देखिए, मृत्यु के आगे भी कोई गांव में उन लोग का वैष्णव आया था, जब उनका छोटा पुत्र जन्म लिया था तो वैष्णव ने बोला था इस बच्चे का नाम नारायण रखना, और अजामिल में नारायण रखा था ना छोटा पुत्र का नाम। हाँ, तो इसका मतलब श्रद्धा था नारायण में, इसीलिए अपना पुत्र का नाम नारायण रखा। तो ये सब कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो उसका बैंक बैलेंस ऑलरेडी था, जिसके वो मृत्यु के समय इनकैश किया। वो जी गोकर्ण है ना, गोकर्ण। लेकिन हाँ एक्सेप्ट, लेकिन ये चील का क्या था, वो तो निम्न शरीर में है चील। एक चील जो निम्न शरीर में, उसका क्या अज्ञात शुक्र, उसका क्या बैलेंस उसका जीरो बैलेंस। लेकिन डॉग का भी तो परिक्रमा हुआ, डॉग का भी परिक्रमा, वेरी गुड पॉइंट, यस। अब वो पता कहाँ गए हम लोग। ओके, ठीक है। तो अभी ऐसे बहुत उदाहरण है, बंकीपुर आरो अनेक उदाहरण আছে অজ্ঞাত স্বীকৃতির, নিশ্চয়ই আছে। ঠিক আছে, यस। গোকর্ণ লাইভ আলাদা, গোকর্ণ লাইভটাই আলাদা, ও তো কিছুই জানতো না। करेक्ट, ও তো গরুর পেটে জন্ম, মানে গায়ের পেটে। হরে কৃষ্ণ। हरि बोल। या बोलिए प्रीतिमानंद प्रिया माता जी। कृष्ण प्रभु, वो चूहा जो था ना, एक बार दिया ज्यादा सब मुझ में जो आग लग गया था, वो भी था ऐसे। मुझ में चूहा का आग लग गया, वो शेविंग नहीं किया था, और वो क्या ऐसे ऐसे करके वो जंतरन ऐसे ऐसे करके छटपट कर रहा था, तो भगवान ने उसको, ये तो कोई पुराण में लिखा हुआ है, ये जो चूहा वाला जो एग्जाम्पल है, कि भगवान ने उसको दिया दिखाने का। शिव पुराण है। ठीक है, तो ये तो कहीं लिखा हुआ भी है ये पुराण में, यस। ओके, तो बहुत सुंदर चीज हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कि এই ধরনের ব্যবহারকে বলা হয় অজ্ঞাত স্বীকৃতি। अगला श्लोक 67 नंबर। हाँ बोलুন माताजी। श्लोक होगी। চিল আর ঈগল এক না কিন্তু। হ্যাঁ কি? চিল আর ঈগল এক না। আলাদা। চিল আর ঈগল के বেঙ্গল इंग्लिश বাংলা হয়ে গেল। इंग्लिश বেঙ্গলি। প্রভু আমাদের জীবনটা তো অজ্ঞাত হতে পারে, যে আমরা কি জানতাম যে ভগবান এত আছে, আমাদের স্বীকৃতি এমন হবে, আপনার কাছ থেকে যে শিক্ষা পাচ্ছি সেটাই তো আমাদের অজ্ঞাত, মানে সত্য থেকে। আর কিছু আমার মতো অধমকে টেনে নিয়ে আসবেন না মাঝখানে। কিন্তু দেখুন, এখন আপনি বলতে পারেন যে আমাদের এরকম হতে পারে, এখন হতে পারে না সেটাও জানি না, কারণ কি হতে পারে আপনাদের মধ্যে বা আপনার মধ্যে হয়তো অনেক পূর্বজন্মের স্বীকৃতি ছিল, তো ওটাকে অজ্ঞাত মানে জানেন ना, अनजाने में स्वीकृति मिल गया, उसको अज्ञात स्वीकृति बोल, अनजाने में मिल गया, नॉट अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन हो सकता है कि आपका ऑलरेडी बैलेंस था, यू आर अ प्योर वेरी नाइस डिवोटी, और आपने 95% कंप्लीट कर चुके हैं पिछले जन्म में, 5% बाकी है। तो बैंक बैलेंस किसका क्या है वो तो हम लोग को मालूम नहीं। ये अभी उपस्थित भक्तों में से, इनमें से बहुत लोग भगवान के धाम वापस चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत लोगों का हो सकता है ये आखिरी जन्म है, जब जैसे देह रखेगा भगवान से डायरेक्ट मुलाकात होगा, ऐसा भी बहुत है। यस, गायत्री राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जन बोल रहे हैं, गोकर्ण को स्वीकृति नहीं मिला तो विद्वान थे ही प्रभु जी, धूली को मिला था, उनका जो पाई था। अच्छा,
हाँ धुंधली को मिला था, क्योंकि वो जब भागवतम सुना तो उसका आत्मा आके बांस के काट का बांस रखा हुआ तो उसमें बैठ गया था, अब पूरा मन से सुना था। वो गाय से पैदा हुआ था, वो ये भागवत कैसे पता चलेगा उसको? तो वो तो उसका जन्म हुआ था गाय के पेट में, गाय तो विद्वान नहीं था, गाय तो भागवत जानते थे, गाय तो भागवत जानते नहीं है, विद्वान नहीं था ना, वो तो ऋषि एक फल दिए थे कि अपने पत्नी को खिला देना, तो बहुत जो पैदा भागवतम में है, प्रभु की पढ़िए। हाँ गोकर्ण गोपखंड तो है, गोकर्ण गोपखंड वेरी इंटरेस्टेड है। वो विद्वान था प्रभु जी, उसको तो सब मिला हुआ था। अरे विद्वान होगा, अरे उसे हरे कृष्ण माता जी, जिसका जन्म गाय का पेट में होता है वो कैसे विद्वान होगा? वो गाय के पेट से आदमी का गाय की तरह था। अच्छा ठीक है, ये स्टोरी सुन लेते हैं हम लोग। भागवतम में जब आएंगे तो हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत लोग उपस्थित है, मैं भी हूँ, जो उतना स्टोरी ये अच्छा से हमको याद नहीं है, हालांकि पढ़े थे भागवतम में। ओके, तो अगला अनुवाद में पूछ लो तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य। देखिए ये प्रकाशानंद सरस्वती पूछ रहे कि आप ही शायद श्री कृष्ण चैतन्य हो ना, जो केशव भारती का शिष्य हो। কেশব ভারতী শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য। হ্যাঁ, প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন তাকে বললেন যে আমি শুনেছি যে তোমার নাম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, মহাপ্রভু का दीक्षित नाम है ना, তুমি শ্রী केशव भारती शिष्य এবং তাই তুমি ধন্য, तुम मायावाद संप्रदाय से लिया हो, तुम धन्य हो गया। हालांकि जैसे आगे भी बताया प्रभुपाद जी ने कि भारती जो है 10 मायावाद संप्रदाय से ये थोड़ा लो है, ठीक है। अगला श्लोक भी पढ़ा हो गया। सांप्रदायिक सन्यासी तुम्हें रहो एक ग्रामे, तुम बनारस में रहो। ग्रामे माने बनारस में, अभी तो ग्राम नहीं है, तो पूरा प्रॉपर टाउन, कितना सुंदर जगह है बनारस। हाँ, सुमना करेंगे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये माया वे लोग क्या केशव भारती से ही मतलब इन्फ्लुएंस थे क्या, प्रकाशानंद सरस्वती साहब? इन्फ्लुएंस मतलब तो मेंशन नहीं है, लेकिन आपने कहा ना कि वो एकदम लो जो थे। हाँ, भारतीय संप्रदाय तो लो है 10 संप्रदाय से, महाप्रभु जानबूझ के वहीं से लिया, सो दैट विनम्रता उन लोग को शिक्षा दे पाए। ये तो अभी आया, प्रभुपाद तात्पर्य में बताया। लेकिन केशव भारती का उन लोग फॉलोअर थे ऐसे तो कहीं लिखा नहीं है, हो सकता है उन लोग केशव भारती भी है। और देखिए प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं लीडर है, उनका तो बहुत शिष्य है, वो तो खुद शायद दीक्षा दे रहा होगा दूसरे को। মহাপ্রভু দুই সম্প্রদায়, একটা ভারতী একটা পুরী। আর কিছু বাবু না না, 10টা আছে, দুটো না, অনেকগুলো আছে। না উনি দুটোর মধ্যে, উনি দুটো ইনভলভ, 10টা সম্প্রদায় আছে জানি, কিন্তু উনি মহাপ্রভু অনলি পুরী আর ভারতী। হরে কৃষ্ণ বাবু। পুরী ঈশ্বরপুরী থেকে যে উনি দীক্ষা নিয়েছেন, ঈশ্বরপুরী তো বৈষ্ণব সম্প্রদায়, তো বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে উনি হরিনাম দীক্ষা নিয়েছেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন উনি মায়াবাদ সম্প্রদায় থেকে। ওকে, এটা ক্লিয়ার সবার হওয়া উচিত। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে হরিনাম নিয়েছেন ঈশ্বরপুরী থেকে। ঈশ্বরপুরী তো মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, মাধবেন্দ্রপুরী তো পুরো ব্রহ্মমধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আসেন, কিন্তু কেশব ভারতী ব্রহ্মমধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায় আসেন না, উনি মায়াবাদ সম্প্রদায়ে আসেন। ওকে, আচ্ছা আগে সাম্প্রদায়িক সন্ন্यासी তুমি रहो এই গ্রামে, কি কারণে আমার সবার না করো দর্শনে? हम लोग का दर्शन क्यों नहीं करते आप? इग्नोर क्यों करते हम लोग? ऐसे करके सरस्वती प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को पूछा। अनुवाद, তুমি আমাদের শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এবং তুমি এই গ্রামেই থাকো, তাহলে তুমি কেন আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করো না? তুমি কেন আমাদের দর্শন পর্যন্ত করো না? अच्छा, इसका बहुत बड़ा तात्पर्य है, लेकिन मैं अगला श्लोक भी पढ़ के सुना दे रहा हूं आप लोगों को। সন্ন্যাসী হইয়া করো নর্তন গায়ন, সন্ন্যাসী হইয়া করো নর্তন গায়ন, ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া করো সংकीर्तन, भावुक सब संगे लइया करो संकीर्तन। ठीक है, तो ये भी बोला प्रकाशानंद सर से, तुम सन्यासी बन के तुम डांसिंग कीर्तन करते हो, वेरी बैड। क्या करना चाहिए? सिर्फ बैठ के अध्ययन करना चाहिए वेदों का उनके हिसाब से। और भावुक माने बहुत इमोशनल होकर तुम डांसिंग कीर्तन करते हो, संकीर्तन करते हो सबके साथ, वेरी बैड, ऐसे करके। ठीक है, अभी इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী অথবা বৈষ্ণব পারমার্থিক প্রগতির মাধ্যমে অধিকারের স্তরে 4টি তত্ত্ব উপলব্ধি করেন: পরমেশ্বর ভগবান, ভগবত ভক্ত, অজ্ঞ ব্যক্তি ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি বা ভগবত বিদ্বেষী। এবং এই 4 জনের প্রতি তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে आचरण करें। तो हम लोग वैष्णव लोग क्या करते हैं, ये 4 प्रकार का व्यक्ति के पास अलग अलग आचरण करता है। जैसे याद रखिए क्या क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 कौन कौन? भगवान के प्रति अलग आचरण, भक्तों के प्रति अलग आचरण, अज्ञ व्यक्ति माने क्या है? इग्नोरेंस अज्ञानी और मासूमों पर। हाँ, अज्ञानी। और ईर्ष्यापरायण माने जो नेगेटिव, दोनों में अंतर है। एक है जिनको जो जैसी रहते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। यस, तो दोनों में एक अज्ञ व्यक्ति है जिनको मालूम नहीं, इग्नोरेंस है, वो ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव है उससे क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। आप अगर ये मध्यम अधिकारी भक्त का अगर श्लोक याद रखिएगा तो वेरी क्लियर है, क्योंकि प्रचारक हमेशा डिफरेंशिएट करता है। ईश्वरे तद्धनेषु बालेषु नुदुनेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। किनको उपेक्षा करना है, किनसे मित्रता रखना है, किनके ऊपर कृपा करना चाहिए। जो अज्ञ व्यक्ति है उनके ऊपर कृपा करना चाहिए, उनको भक्ति मार्ग लाना चाहिए। আগে তিনি ভগবানের প্রতি তার প্রেম বর্ধিত করার চেষ্টা করেন, তিনি ভক্তদের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন হন। এই ওইওয়ালা শ্লোকটাই বিশ্লেষণ। অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করেন এবং যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ সেই সমস্ত ভগবত বিদ্বেষীদের উপেক্ষা করেন। উপেক্ষা মানে अवॉइड करते हैं। उपेक्षा माने मतलब नहीं, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा बोलते, नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, उन लोग से दूर रहना है। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই প্রকার আচরণের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গিয়েছেন এবং সেই জন্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন তিনি তাদের সঙ্গ করেন না অথবা তাদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখিয়ে গিয়েছেন যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারক যেন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলে তার সময় অপচয় না করেন। কিন্তু যখন শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন ওঠে তখন বৈষ্ণব সিংহ বিক্রমে এগিয়ে এসে বিরুদ্ধে सिद्धांतकारी परास्त करें। अगर कोई डिबेट का एक प्लेटफॉर्म है जहां मायावाद भी है, उस समय तो वैष्णव आएगा, उस डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा और उसको खंडन भी करेगा। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक सभा होता था, ब्राह्मण सभा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इस सभा में हर एक साल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जाते थे और उस सभा में ब्राह्मण वैष्णव सभा क्या हमको याद नहीं आ रहा है, एक सभा आयोजन होता था। ये आता है प्रभुपाद लीला अमृत में, नहीं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जीवन में आता है। और उस सभा में हर एक साल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जाते थे और उसमें डिबेट होता था कि कौन बड़ा, वैष्णव बड़ा ना ब्राह्मण बड़ा, ठीक है। और ये सभा होता था। एक साल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नहीं जा पाए, शायद उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो उन्होंने अपना पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा था। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जाकर पहले बहुत वैष्णव ब्राह्मण लोगों का गुण कीर्तन किया, बहुत गुण कीर्तन किया। और फिर लास्ट में बोला ठीक है, ब्राह्मण लोग अच्छा है लेकिन वैष्णव लोग ब्राह्मण लोग से भी श्रेष्ठ है। और फिर उन्होंने बताया कैसे एक वैष्णव होने के मतलब जितना भी उनका ब्राह्मण गुण सब उनमें है। ब्राह्मण स्मार्त हो सकता है, जन्म से ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनमें ब्राह्मण गुण होगा। लेकिन वैष्णव अगर वो हो जाए, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव हो जाए तो समस्त सद्गुण उनमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रूफ किया था और बहुत उनको ख्याति मिला था ये पर्टिकुलर सभा में। बहुत सबने उनको स्वीकार किया बाद में कि वैष्णव, साथ में सबने बाद में स्वीकार किया कि वैष्णव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। तो यहां भी देखिए श्रील प्रभुपाद बता रहा है, किंतु ऐसे तो कभी मुंह नहीं लगता है, वैष्णव लोग कभी मायावादी लोगों का मुंह नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई सभा हो जहां आपका पॉइंट अगर नहीं रखेंगे तो फिर तो सारा लोग सोचेगा अरे देखो वैष्णव भाग गया, ऐसे ही सोचेगा ना। तो जहां जरूरी है वहां मुंह खोलना पड़ेगा और वहां प्रमाण करना पड़ेगा कि कैसे वैष्णव लोग मायावाद से तो बहुत कोटि कोटि गुण श्रेष्ठ है। मायावाद तो है ही, हरे कृष्णा।
तो वो पूरा जब समय आएगा तब अपना जो शिक्षा है, जो सिद्धांत है, उसको तो स्थापन करना ही दरकार है ना। सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, एक जीव गोस्वामी का भी आता है ना, उसमें बोलते हैं कि जो ज्यादा तर्क में इन सब में नहीं जाना चाहिए। वो एक लीला है ना, उन्होंने उनका त्याग कर दिया था फिर। तो दोनों को कैसे समझे? एक ही तरह से समझे, एक ही तरह से समझे। वो तो जीव गोस्वामी के 2 बार हुआ एक्चुअली। जीव गोस्वामी एक तो एक दिग्विजय पंडित आया था वृंदावन में। हाँ, ये नवद्वीप वाला नहीं, वृंदावन में तो बोलते हैं कि तर्क करने मना कर रहे हैं यार, यहाँ पे बोल रहे कि हाँ। तो जीव तक देखिए, वो अलग अलग से देखिए, वो वहां रूप गोस्वामी ने उनको बहिष्कार कर दिया कि तुम वृंदावन में भजन साधन करने आए हो, तुम इन लोग से तर्क करके सर्टिफिकेट ले रहे हो। एक व्यक्ति को, हाँ, तो वो वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य को मैंने प्रवचन में सुना, सब वैष्णव लोग, क्योंकि वल्लभाचार्य महाप्रभु के संगत करते थे तो इसीलिए उनको गुरु तुल्य था। महाप्रभु तो भगवान है साक्षात, तो महाप्रभु का जो संग करते हैं, महाप्रभु के साथ उठा बैठा करता है, तो उनके प्रति तुम तर्क किया, ये तो अपराध हुआ। इस एंगल से रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को तिरस्कार किया। और एक्चुअली रूप गोस्वामी ने खुद भक्ति रसामृत सिंधु का तात्पर्य लिखा था, अनुवाद, और वो चेक कराने के लिए वो मिलते आते थे वल्लभाचार्य, तो उनको दिया था, देखो कैसा है। तो वल्लभाचार्य ने वो देखकर बोला था, वो एक श्लोक आता है, वो श्लोक का थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया था। पिशाची हृदि वर्तने तावत भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदय भवेत्। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदय भवेत्। ये वाला श्लोक जब भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने पढ़ा तो श्रील वल्लभाचार्य जी ने भुक्ति और मुक्ति को पिशाची के जैसे उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी ने लिखा, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, भुक्ति मुक्ति पिशाची। तो वो ऐसे उनको थोड़ा लिख दे, तो रूप गोस्वामी कुछ बोला नहीं उस समय। फिर वल्लभाचार्य जी ने बाद में यमुना में गया, और एक्चुअली ये जब आलोचना हो रहा था पीछे, जीव गोस्वामी फैनिंग कर रहा था, चामर हिला रहा था, तो उन्होंने सब सुना और उन्होंने देखा कि श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने ये नहीं देखा कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि स्पृहा, पिशाच स्पृहा, वो स्पृहा, इसका स्पृहा वो पिशाच के जैसा है, भुक्ति मुक्ति पिशाच के जैसा नहीं। भुक्ति मुक्ति का स्पृहा, स्पृहा माने उसका जो कामना, वो पिशाची जैसा है। तो स्पृहा वर्ड वल्लभाचार्य जी ने इग्नोर कर दिया, देखा नहीं, नजरअंदाज होता ना, मैंने मिस आउट हो गया। तो ये चीज जीव गोस्वामी ने वल्लभाचार्य को यमुना के घाट में बताया, और जब बताया तो वल्लभाचार्य को लगा, अरे वाह कितना सुंदर ये, हाँ आपका परिचय दीजिए। बोला मैं तो उनका शिष्य हूँ। बोला वाह, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, हाँ, ये मैंने रूप गोस्वामी को इतना उनका लिखा वो खंडन किया, और देखिए रूप गोस्वामी ने कुछ बोला भी नहीं। तो वल्लभाचार्य ने वापस गया रूप गोस्वामी के पास, जाकर क्षमा प्रार्थना की, प्लीज मेरे को क्षमा कर दीजिए, आप जो बोला एकदम सही बोला। पिशाची हृदि वर्तते, वो तावस यात्रा वो श्लोक के बारे में, जो ये इसका जो स्पृहा है, इसका इच्छा कामना भुक्ति मुक्ति का, ये पिशाची जैसा है। तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची हृदि वर्तते, ऐसे कुछ है श्लोक। तो फिर रूप गोस्वामी ने बोला नहीं नहीं ठीक है, आपने करेक्शन किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन कौन बताया आपको ये सब? तो बोला ये आपका शिष्य नहीं बताया। कौन? बोला जीवा गोस्वामी। ठीक है, ओके ठीक है, रुको, अवे अवर, तो ठीक है, वो चला गया। फिर बाद में जब जीवा गोस्वामी आए तो उनको बहुत डांटा, तुम वृंदावन किस लिए आए हो, लोगों का गलती पकड़ने, हाँ, तुम वृंदावन रहने के लिए लायक नहीं, चले जाओ ये स्थान छोड़कर, ऐसे करके फिर वो जाकर वो क्रोकोडाइल, तो वो अलग है। यहाँ अपना पांडित्य नहीं दिखाने से भी चलता, ये रूप गोस्वामी बताना चाह रहे थे। हालांकि जीवा गोस्वामी ने जो किया वो भी गलत, उतना तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि
उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक विनम्रता से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था उसको पकड़ा दिया श्रील वल्लभाचार्य का। उनका कोई उद्देश्य नहीं था उनको छोटा करने का। ये भी है। राजीव प्रभु, श्लोक क्या है? पूरा ठीक ही बोला। मुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची देवत्वते तावत भक्ति सार्थक कथम अभूतयो भवत्। ওকে, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি করিয়া সবে বল হরি হরি। जय जय जय